Hello, Bhaiya. Good morning. So today we will discuss about SAP PM configuration. Okay. So we will. I'm going to start our training session, and we will discuss about SAP PM configuration. So today we will discuss about. One second. I'm sharing my screen. Okay. So today we will discuss. Today we will discuss about in previous lecture. In previous lecture, we had configured related to maintenance and service processing, and we had done all the setting, all the configuration related to maintenance notification. I mean maintenance and service notification. Okay, but today we will discuss about maintenance and service order. Okay, so this is the our this is the topic on which today we will discuss. Okay, so now I'm going through our config SAP server, and I'm opening this, and so here we will use T code as a SPRO, and this is a SAP reference IMG. After that, I will go through the plant maintenance and customer service. So it is our PM configuration node, and today we will discuss about maintenance and service processing. And after that, we will go through the maintenance and service order. In maintenance and service order, we will discuss and we will do configuration. So please come on configuration step. These are the our configuration step, and this is the our configuration step on which we will do some configuration. So first is our function settings for order. So जब कभी भी हम मेंटेनेंस ऑर्डर बनाते हैं, तो मेंटेनेंस ऑर्डर जब हम बनाते हैं तो हमको क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ये पहले समझेंगे. So first of all, we will discuss about maintenance activity. So I will go for IW31 is the T code to create maintenance order. So here you can see there are so many fields and so many inputs. Means ये सारे inputs blocks हैं जो inputs के field हैं. Suppose that first of all we will have to give input as a order type, priority, functional location, equipments, assembly, you second, and planning plan and business. But some of them, कुछ इसमें से कुछ ही कुछ ही सेटिंग्स को अगर हम यूज करेंगे तो वी कैन मूव फॉरवर्ड. Okay, suppose that I am taking PM02. Okay, after that I will choose as a equipment 10007528. So now you can see this is not exit. Okay, but I will again try. So we can move. You can see ना कि मैंने क्या किया, मैंने जस्ट मेंटेनेंस ऑर्डर टाइप यूज किया, फंक्शनल लोकेशन यूज किया, सॉरी इक्विपमेंट यूज किया, एंड नाउ आई एम एबल टू मूव फॉरवर्ड इन द सेंस कि आई कैन इंटर इन टू क्रिएट ब्रेक डाउन मेंटेनेंस. सो ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं, आपके मन में ये आइडिया होगा कि ये सारी चीजें आती कहाँ से. ये कैसे हम ऑर्डर टाइप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, प्रायोरिटी कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, इक्विपमेंट तो हम ऑलरेडी इक्विपमेंट से रिलेटेड सारी कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं, इक्विपमेंट से रिलेटेड सारी सेटिंग्स को डन कर चुके हैं, एंड इवन वी हैड क्रिएट वन इक्विपमेंट आल्सो. नाउ वी हैव वन इक्विपमेंट 7528. on for this we will create maintenance order. Okay, so today we will discuss on this topic ki how to configure order type, define number range for order type, assign order type to PM plant, defining planning indicator, refine default value by order, settlement rule, and define proposed reference time for technical object and control key. So ये सारी settings पे हम discuss करेंगे. Then control key में हम क्या डिस्कस करेंगे, मेंटेन डिफॉल्ट वैल्यू पर पीएम ऑर्डर टाइप, मेंटेन एक्टिविटी टाइप. सो इन मेंटेनेंस एक्टिविटी टाइप में हम क्या देखेंगे, डिफाइन पीएम एक्टिविटी टाइप, असाइन अलाउड मेंटेनेंस एक्टिविटी टाइप टू पीएम ऑर्डर टाइप, डिफॉल्ट वैल्यू, एंड डिफाइन चेंज डॉक्यूमेंट,
goods movement and costing data. So there are so many things on which we will discuss. Okay, there are so many things on which we will discuss. So we will have to discuss one by one. Okay, so first I am going to configure this thing, configure order type. Okay, so it is our configuration node, plant maintenance and customer service, maintenance and service processing, maintenance and service order, and now I'm going for function and setting for order type. So this is my order type. So configure order type. So first I will go for order type. So for your better knowledge, I want to tell one things: PM01, PM02, PM03, PM04, PM05, and PM06. Okay, these are the standard. Even PM07, these are the standard maintenance order type. These not order type is sorry, these order type are standard maintenance order type. ये स्टैंडर्ड टाइप है. एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टैंडर्ड के थ्रू कंसीडर करूं, मैं कोई किसी भी प्रोजेक्ट में मैं केवल स्टैंडर्ड टाइप ही यूज करूं, देन यू कैन यूज इट. लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, क्लाइंट कंफ्यूज हो रहा है, तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से भी चेंज. जैसे पीएम फॉर करेक्टिव मेंटेनेंस, PM02 for breakdown maintenance, PM03 for preventive maintenance, PM04 for refurbishment order. PM5 is a order including notification. I think it is a different thing. And PM6 is a calibration order और PM7 is a investment order. So आप ये कुछ भी यूज कर सकते हैं. अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं कुछ नया क्रिएट करूं, तो नया के लिए न्यू एंट्री पे क्लिक करना पड़ेगा. यू विल हैव टू क्लिक ऑन न्यू एंट्री, अदरवाइज यू कैन कॉपी विथ दिस वन. आप ZPM1 करके भी कर सकते हैं, ZPM1 करके भी, बट ये है तो आप ZPM ना करके APPM भी कर सकते हैं. और आप, लेकिन ये सेव हो गया APM1 आप ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसमें सारी डिटेल मिलेगी. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द सेटलमेंट प्रोफाइल. तो दिस इज आवर फॉर मेंटेनेंस ऑर्डर सेटलमेंट प्रोफाइल विल बी 40 एंड दिस इज द बजट प्रोफाइल. दिस इज अ स्क्रीन रेफरेंस ऑब्जेक्ट. तो ये सारी चीजें स्टैंडर्ड होती है, देन उसके अकॉर्डिंग हमको इसको एज इट इज कर सकते हैं. लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑलवेज फॉलो द स्टैंडर्ड थिंग्स, PM01, PM02, PM03, PM05, PM06, and PM07. Okay, these are the 5, 6, 7 are the standard things. So you can follow these same thing. I will go for next one. Okay, after that I will go for next settings, define number range for maintenance order. So this is my maintenance order number range. So I will go for maintenance order number range. मैंने उस टाइम भी बोला था, अभी भी अगेन आई एम टेलिंग अबाउट इट, कि जब भी नंबर रेंज डिफाइन करना होगा वो प्रोडक्शन ऑर्डर में चेंज करना होगा, और उसके लिए जो टी कोड होता है वो टी कोड होगा OION. इसको यूज करके आप प्रोडक्शन ऑर्डर में इस टी कोड का यूज करके नंबर रेंज को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू चेक ग्रुप, कि आपका जो मेंटेनेंस ऑर्डर का जो ग्रुप है, सपोज दैट कि ZM1 या ABPM1 जो भी किसी ने कुछ कॉन्फ़िगर किया है, सपोज दैट कि आई एम क्रिएटिंग विथ सपोज दैट कि मैंने ZM01 किया, तो मेरा क्या है, इट इज मेरा जो ऑर्डर टाइप है इट इज इन नॉन असाइन एलिमेंट. ओके, अगर मुझे एलिमेंट ग्रुप के साथ स्टैंडर्ड वन के साथ असाइन करना होगा, सो आई विल हैव टू कम ऑन स्टैंडर्ड. I will have to check. Okay, so I will have to check. I think I'm not able to find currently because there are so many lists. If I will go for group, and if I'm going to assign with ZMN and click with element group assignment, it is for assignment. Here we can find. So here is the standard things is a 15. ये 15 नंबर जो दिख रहा है, नंबर एंड ये 15 नंबर जो दिख रहा है ग्रुप टेक्स्ट, ये मेंटेनेंस एंड सर्विस ऑर्डर के साथ अगर आप इसको असाइन कर देंगे, देन वी कैन क्रिएट आवर मेंटेनेंस ऑर्डर फॉर ZM1. ओके, तो मैं ये क्या करूंगा, इसके साथ असाइन कर दूंगा. और नाउ यू कैन सी ये ZM1 जो था वो गायब हो गया यहाँ से. ठीक है, सो दिस इज हाउ एंड आई विल सेव इट. तो ये होता है नंबर रेंज असाइनमेंट, और इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर. आफ्टर दैट आई विल गो फॉर ऑर्डर टाइप टू प्लेम प्लांट. सो सपोज दैट
आई एम गोइंग बैक, असाइन ऑर्डर टाइप टू मेंटेनेंस प्लांट। सो सपोज दैट कि मेरा जो ऑर्डर टाइप है वो PM01 है, PM02 है और PM03 है। तो मेरा जो PM01 है वो तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो आई विल गो फॉर न्यू एंट्री और यहाँ पे मैं 1000 प्लांट यूज करूंगा। टाइप में यूज लूंगा PM01, नीचे फिर लूंगा PM02, फिर नीचे 1 बाई 1 में सारे ऑर्डर टाइप को असाइन कर दूंगा सेम प्लांट से PM05। और मैं यहाँ से क्या करूँगा, 1000 को मैं यहाँ से कॉपी करके, कॉपी एंड देन पेस्ट, पेस्ट, ओहो पेस्ट, ये मिस्टेक हो गया, ये मैं 1000 मैनुअली पुट कर दूंगा एंड प्रेस एंटर एंड ऑलरेडी एग्जिट। ये क्या बोल रहा है, सिस्टम इज ऑलरेडी, मतलब ये प्लांट के साथ ऑलरेडी है, तो नो नीड टू डू, बिकॉज मैं कोई कस्टम ले रहा था, लेकिन ऐसे ही असाइन करते हैं, इट इज द वे। ओके, आप कोई भी देख सकते हैं, अगर फॉलो करेंगे प्लांट या प्लानिंग प्लांट 1000, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि प्लानिंग प्लांट 1000 में बहुत सारे मेंटेनेंस ऑर्डर टाइप यहाँ असाइन है। ठीक है, ये सारे असाइन, नो नीड टू डू। ठीक है, लेकिन करना होगा तो ऐसे करना है कि न्यू एंट्री पे क्लिक करना है और न्यू एंट्री पे क्लिक करके यहाँ प्लानिंग प्लांट, यहाँ ऑर्डर टाइप आप यूज करेंगे, देन ये हो जाएगा। जैसे 1000 के साथ मैं ZM1 या PM AB APM1 जो मैंने किया था कर सकता हूँ। तो ये इट इज डॉज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है, बट मैंने किया था। ओके, आई विल हैव टू चेक अगेन। मैंने तो ऑर्डर टाइप ABP1 APM1, ओके नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया था। मैं एक मैं करके दिखा रहा हूँ, APM1, प्रेस इंटर एंड सेव इट। मैंने एक ऑर्डर टाइप APM1 किया एंड देन आई एम गोइंग टू असाइन विथ अ नंबर रेंज। मैं नंबर रेंज डिफाइन करने जा रहा हूँ। मैं ग्रुप में देखूंगा तो APM1 यहाँ पे दिखेगा, करेक्टिव मेंटेनेंस ऑर्डर। सो आई विल गो फॉर असाइनमेंट, सो आई विल क्लिक ऑन ग्रुप एंड आई विल असाइन विथ स्टैंडर्ड 1। तो मैं यहाँ असाइन करूंगा 15 नंबर के साथ मेंटेनेंस एंड सर्विस ऑर्डर। मैं कंटिन्यू कर दूंगा एंड देन सेव कर दूंगा बैक। Okay, so this is how I had assigned. After that, I will assign order type to maintenance plan. I will click on new entry APM1 by 1, sorry, 1000 and APM1, press enter and press save. This is how we had created. Now, if I want to create new order type with create maintenance order with new order type, I will have to use T code as a IW30, and here I will use IPM1. Okay, and after that I will go for equipment. This is my equipment number and press enter. You can see ना, it is working. मेरा अपना खुद का ऑर्डर टाइप मैं यूज कर पा रहा हूँ 100 नंबर मेंटेनेंस प्लानर ग्रुप के साथ, 100 नंबर प्लानिंग प्लान के साथ, और सारी चीजें वर्क कर रही हैं। मेरा फंक्शन लोकेशन, मेरा यहाँ इक्विपमेंट, ईच एंड एवरीथिंग इज कमिंग इन मेंटेनेंस ऑर्डर, यू कैन सी वेरी वेल। ओके, इवन मेरा वर्क सेंटर इज शोइंग देयर, सब कुछ मेरा शो कर रहा है एंड इट इज वर्किंग फाइन। सो ये वो नॉर्मल सेटिंग्स हैं जो मैंने अब तक किया है। ओके, now I'm going to move forward. Define planning indicator default value by order. So okay, I will go for settings, define planning indicator for each order type. Okay, फर्स्ट ये देखिए आप, डिफाइन इंस्पेक्शन टाइप फॉर मेंटेनेंस एंड सर्विस ऑर्डर। सो ये क्या होता है कि जब हम कैलिब्रेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं ना PM06 या PM05 के साथ, तो उस प्लानिंग प्लांट में हमको असाइन करना पड़ता है। सो हमारा प्लानिंग प्लांट इज 1000 और 1000 में हमारा जो प्लांट जो हमारा जो ऑर्डर टाइप है PM06 है, ये कैलिब्रेशन ऑर्डर टाइप है। इसीलिए यहाँ पे जो हम इंस्पेक्शन टाइप असाइन करते हैं वो 40 नंबर होता है। अगर मैं प्रेस इंटर करके मैं इसको सेव कर दूंगा, देन इट विल वर्क। ये क्या करेगा, इंस्पेक्शन लॉट को क्रिएट करेगा। सो ये सेटिंग्स हम भूल गए थे। सो ये सेटिंग्स को हम क्या करेंगे, यहाँ से असाइन कर सकते हैं। सॉरी, मतलब ये सेटिंग्स मैंने यहाँ मेंटेन करना भूल गया था। सो आई विल मेंटेन इट। ओके, प्लीज करेक्ट इट इन योर एक्सेल शीट। ओके,
और ये दी सेम ये रहेगा सेटिंग्स, सॉरी डी, एंड असाइन ऑर्डर टाइप टू, ये हो जाएगा आपका ये। ठीक है, सो उसके लिए मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन किया। ओके, सो ये हो गया डन। अब देन मैं आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन नोट, डिफाइन डिफॉल्ट वैल्यू फॉर प्लानिंग इंडिकेटर फॉर ईच ऑर्डर टाइप। सो आई विल क्लिक ऑन दिस, एंड ये देखिएगा आपको इंडिकेटर जो PM1 PM2 या PM03 के लिए है, नेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा। आई विल हैव टू नेक्स्ट पेज। सो हियर यू कैन सी PM01 PM02 PM03 PM04 PM05 PM, इसका जो इंडिकेटर है कि PM01 क्या है, ये इमीडिएट ऑर्डर है। PM02 क्या है, ये क्या है, अनप्लान्ड ऑर्डर है। PM03 क्या है, प्लान ऑर्डर है। PM04 क्या है, प्लान ऑर्डर है। PM05 क्या है, इमिड अनप्लान्ड ऑर्डर है। PM06 क्या है, ये भी प्लान ऑर्डर है। ओके, सो ये क्या कर रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम ये सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड होता है, इसमें अब ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। एज इट इज हम लेंगे, क्यों, क्योंकि SAP को मालूम है कि इसका क्या यूज है और हम कैसे इसको कर। ठीक है, then I will move on the next one, सेटलमेंट रूल। ओके, सो आई विल गो फॉर द नेक्स्ट। देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये PM1 को SAP क्या कहता है कि ये इमीडिएट ऑर्डर, इसीलिए यहाँ पे यूज है। PM02 क्या है, ये अनप्लान्ड ऑर्डर है, ये क्योंकि अचानक मशीन ब्रेक डाउन हो जाती है। PM03 क्या है, ये भी इमीडिएट ऑर्डर है। PM04 क्या है, ये भी इमीडिएट ऑर्डर है। PM05 क्या है, ये अनप्लान्ड ऑर्डर है। PM06 क्या है, ये प्लान है। आप उसके लिए प्लानिंग करेंगे कि मेरे को कैलिब्रेशन करना है। सो इट इज इंडिकेटर, प्लानिंग इंडिकेटर, किस तरह का प्लानिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप इस पर इंडिकेटर इंडिकेट कर सकते हैं। देन गो फॉर बैक, create a default value file for external procurement. Okay, so this is the things, I think it is related to external procurement profile. So I think someone had messed up, due to this reason we are not able to see it. So we will go through the first one. Okay, so ये क्या है, they had create some external profile and they have used as external procurement service, and they had used external cost element for external service. Here purchase organization will be 100,000, one ये purchase group and material group. Okay, so इन्होंने इसके लिए ऐसा किया है। इफ यू वांट, आप भी वही सेम चीज क्रिएट कर सकते हैं। न्यू आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पे इसका नाम चेंज कर सकते हैं। आप SEIL या SEIL करके भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सत्यार्थ मोबाइल लिमिटेड परचेज ग्रुप आपको नहीं मिल रहा है, तो परचेज ग्रुप यहाँ से आप सर्च करेंगे तो परचेज ग्रुप मिल जाएगा। तो आपको कौन सा परचेज ग्रुप लेना है, उसके अकॉर्डिंग परचेज ग्रुप आप ले सकते हैं। बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि पर जो मैंने परचेज ग्रुप पहले डिफाइन किया था वही है या नहीं है। ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन सिस्टम इज शोइंग एज ए कि ये नहीं है, तो मैं कुछ करूंगा नहीं, प्रेस इंटर करके और मैं बैक रिमूव कर दूंगा और प्रेस इंटर करके सेव कर। इस तरह से मैंने एक्सटर्नल प्रिक्वायरमेंट के लिए ये कर दिया, ये सेव कर दिया मैंने। सो ये हो गया आपका। ये सेटिंग्स भी मुझे लगता है, सॉरी फॉर दैट भैया, ये सेटिंग्स भी मैंने यहाँ लगता है मिस कर दिया है। एक्चुअली ये हमारे तरफ से होता नहीं है, ये क्या है ना, ये MM वाले लोग करते हैं, MM के कंसल्टेंट करते हैं। इसको क्या करना होगा, आपको अपने एक्सेल शीट में ऐड कर लीजिएगा, देन इट विल वर्क फॉर यू। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल बी द T code for this, you can check SPRO. Okay, so T code will be SPRO, यहाँ भी T code will be SPRO। ठीक है, I will use it. So I will move for the next one, go back। ये एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट में MM वाले करते हैं, वो बताते हैं कि क्या क्या चीजें असाइन करना है। एक्सेस सीक्वेंस फॉर डिटरमाइनिंग एड्रेस, आई थिंक इट इज नॉट रिलेवेंट टू अस। डिफॉल्ट वैल्यू फॉर प्रोफाइल जनरल डेटा ऑर्डर, ओके वी विल चेक। आई थिंक इट इज नथिंग। defined access sequence for determining, no it is nothing, no need to worry. Please come on the default sorry, the settlement rule, define time and creation of distribution rule. So we will go for this one,
हियर वी विल डू सम चेंजेस। सो आपको मैं बता दूं कि जो मेरा APM1 जन मैंने किया, उसमें जो सेटलमेंट रूल है कब क्रिएट होगा, तो मैंडेटरी फॉर कंप्लीटिशन, जब मैं इसके लिए मैंडेटरी, मैं जब इसका कंप्लीटिशन करूंगा, मतलब जब ऑर्डर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही सेटलमेंट रूल क्रिएट होगा। यही चीज हम यहाँ से सेट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन रूल सब ऑर्डर, मतलब नो स्पेशल हैंडलिंग सब ऑर्डर। ओके, ये स्टैंडर्ड है, ऐसे ही हम SAP PM में यूज करते हैं। ये स्टैंडर्ड का मतलब कि इट इट वी आर अडॉप्टिंग बाई because of SAP had suggest that कि it is a standard and you can use in this way। तो इस वजह से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर स्टैंडर्ड ऑर्डर टाइप के लिए देखेंगे तो सेम चीज मिलेगा आपको, आपको ये सब सेम मिलेगा। इसमें क्या इन्होंने किया है कि PM1 के लिए मैंडेटरी फॉर कंप्लीटिशन, PM02 के लिए भी मैंडेटरी फॉर कंप्लीटिशन, बट PM03 के लिए डिस्ट्रीब्यूशन रूल और रिलीज, जैसे ही आप मेंटेनेंस ऑर्डर को रिलीज करेंगे वो रूल क्रिएट करेगा। तो PM3, PM04, PM05 और PM06 के लिए ये सारी चीजें ऐसे एप्लीकेबल होती है। ये देखिए, ये चीजें आप एज इट इज ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो we'll move on the next. Define proposed reference time and technical completion. So define proposed time and reference time. So ये time will be reference time will you can assign as a 1 2 3, but not, okay. So I will assign for my maintenance order 3, okay, and save it. And if you will go for PM01, PM03, PM04, ये कुछ इसने स्टैंडर्ड में कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड में आप नहीं यूज कर रहे, आप करते हैं नहीं करते हैं उससे सिस्टम पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला। आई थिंक इट इज अननेसेसरी सेटिंग्स। ओके, आई एम गोइंग बैक। सो दिस इज हाउ हम वी हैव कंप्लीट दिस सेटिंग्स। ये सारी सेटिंग्स को हमने कंप्लीट करके, देन वी विल गो फॉर कंट्रोल की। सो हियर वी कैन फाइंड कंट्रोल की। सो कंट्रोल की भैया मैं फिर से बता दूं आपको, कंट्रोल की जो होता है PM01, PM02, PM03 जो होता है, ये स्टैंडर्ड टाइप होता है, इसको ही हमें यूज करना है। इट इज ए स्टैंडर्ड टाइप। ओके, सो हम जब PM02 होता है वो एक्सटर्नल सर्विस, एक्सटर्नल जब वर्क करते हैं, एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट करते हैं, वहां हम PM02 ऑर्डर टाइप में कंट्रोल की यूज करते हैं। और जब हमको एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट इन द सेंस सर्विस के लिए करना होता है, तब हम करते हैं PM03। और PM01 जो होता है ये हमारा असाइन होता है हमारे वर्क सेंटर के साथ, और ये इंटरनल वर्क के लिए यूज किया जाता है। सो इट इज ए स्टैंडर्ड एंड वी विल यूज द स्टैंडर्ड वन। एंड आई विल गो फॉर मेंटेन डिफॉल्ट वैल्यू फॉर कंट्रोल की। सो ये कंट्रोल की किसके लिए करूंगा मैं, और प्लानिंग प्लांट यूज करूंगा मैं 1000, और ऑर्डर टाइप में लूंगा APM1। तो इसको मैं दिखा रहा हूं कि कैसे होगा। इस पर आप डबल क्लिक करिएगा और यहाँ पे कंट्रोल की PM01 जब आप डालिएगा, तो ये जब भी मेंटेनेंस ऑर्डर आप क्रिएट करिएगा उसमें वो डिफॉल्ट आएगा। अब पूछिएगा कहाँ आएगा, तो मैं दिखा देता हूँ। IW31 से आप जब ऑर्डर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे अपना इक्विपमेंट यूज करेंगे, तो प्रेस इंटर करूंगा, ऑपरेशन टैब में आएंगे तो आपको यहाँ जो कंट्रोल की है ये हमेशा डिफॉल्ट PM01 मिलेगा। अगर ठीक है, अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग आएगा। सो आई एम गोइंग टू चेंज इट। ओके, सपोज दैट आई एम गोइंग टू चेंज PM02, तो मैं प्रेस इंटर करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आई एम गोइंग अगेन, आई एम गोइंग टू चेक, देखता हूँ कि क्या होता है। बिकॉज दिस कंट्रोल की इज कमिंग फ्रॉम वर्क सेंटर। सो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये चेंज नहीं हुआ है, और ये डिफॉल्ट इन सेंस, ओके, इधर चेंज नहीं हुआ है। ओके, बट जो स्टैंडर्ड है वो PM01 ही करते हैं, ठीक है। नो नीड टू चेंज, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम PM01 ही काम यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये ऑर्डर टाइप हम क्यों क्रिएट करें, क्योंकि ये हमारे वर्क सेंटर पे हमारे हमारे एक्टिविटी में परफॉर्म हो रहा है। ड्यू टू दिस रीजन हम ये करेंगे। अगर आपको ये नई चीजें क्लियर होती, आप स्टैंडर्ड वन भी चेक करेंगे तो भी आपको दिखेगा कि हमेशा PM01 ही सबने असाइन किया। इवन सब सब सारे ऑर्डर टाइप के लिए ये PM01 ही असाइन करते हैं। यानी सभी ऑर्डर टाइप में हम हमेशा कंट्रोल की PM02 PM01 ही असाइन करते हैं।
I have checked in each and every order type a control key had assigned by system as a PM01. Okay, so this was the our settings. After that, we will move on the maintenance activity. So maintenance activity type, we will move on the next configuration on maintenance activity type. So define activity type. So here you can see एक्टिविटी टाइप देखिए, जो स्टैंडर्ड है इंस्पेक्शन होता है, रेगुलर मेंटेनेंस होता है, रिपेयर होता है, ये 3 होता है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब क्रिएट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 या कुछ और चीजें भी क्रिएट कर देते हैं अपनी मर्जी से, कुछ भी मर्जी आता है कुछ भी क्रिएट कर देते हैं। लेकिन आप इतना समझिए कि यही होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये इंस्पेक्शन क्या करते हैं हम, करेक्टिव मेंटेनेंस में हम इंस्पेक्शन करते हैं, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में हम यहाँ ब्रेकडाउन या रिपेयर डाल सकते हैं, या ये जो शेड्यूलिंग मेंटेनेंस में रेगुलर मेंटेनेंस डाल दें। तो मैं जा रहा हूँ सेम असाइन करने, असाइन वैलिड मेंटेनेंस एक्टिविटी टाइप टू ऑर्डर टाइप। सो हियर वी विल सी, यहाँ देखिए PM01 के लिए क्या असाइन किया है इन्होंने, 101 किया है। मतलब क्या है कि ये इंस्पेक्शन है। करेक्टिव मेंटेनेंस के लिए इन्होंने तीनों तरह की चीजें असाइन की है। इट इज ए रॉन्ग। अगर आपको करना है तो आप इस तरह से करिए कि PM01 के लिए आप डायरेक्ट 001 डालिए, प्रेस इंटर। उसके बाद PM03 के लिए 002 डालिए, रेगुलर मेंटेनेंस। PM0 सॉरी, ओके PM02 गलत हो गया, ठीक है। PM03 के लिए आप 003 यूज करिए, रिपेयर, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ ये 2 होगा और आई विल गो फॉर बैक, अगेन आई विल क्रिएट। देखिए PM0, ये क्यों स्क्रीन इतना ऐसा दिखने लगा, ये PM01 ऑर्डर टाइप के लिए मैं 001 करूँगा। PM02 के लिए मैं 003 करूँगा। ओके ओके, लगता है ये हो चुका है। PM0 मैं 3 करूँगा और यहाँ मैं डालूँगा PM02 002। तो ये रेगुलर मेंटेनेंस हो गया। इसके लिए मैंने ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन होता है तो इसमें हम रिपेयर करते हैं, प्रिवेंटिव में हम रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं, और करेक्टिव में हम क्या करते हैं, करेक्टिव में हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। इसीलिए मैंने 001 002 और 003 असाइन किया। सो दिस इज द प्रॉपर वे। अब कुछ भी नहीं कि 104 105। अगर आप यहाँ पे आके नोटिफिकेशन क्रिएट करते हैं, अगेन मैं दिखा रहा हूँ, अब यहाँ आप इक्विपमेंट यूज करते हैं, प्रेस इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, सॉरी एक्टिविटी टाइप इज नॉट देयर, इट इज इन आई थिंक गिवन, it is not showing in this screen, little confused. PM activity type, from here you can assign, okay, but it is not showing 001. I can put invalid combination, okay, sorry, no, I am going to again create IW31 PM02, press enter. So here you can see 102 is a default regular maintenance, someone had assigned, due to this is coming, ठीक है। ये डिफॉल्ट आता है, आप चाहो तो 002 या 003 भी असाइन कर सकते हो, तो ये रिपेयर के चेंज हो जाएगा। तो PM एक्टिविटी यहाँ असाइन करते हैं और ये ऐसा होता है, ठीक है। एंड अलाउ असाइन, ओके, so I'm going to assign I have assigned default value for maintenance for okay, so default value मैं अब यहाँ चेंज करूंगा। जब मैं AP1 करूंगा ना तो यहाँ मेरा आएगा 001, प्रेस इंटर। ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड कॉम्बिनेशन विथ मेंटेनेंस एक्टिविटी, ओके, मैं क्या करता हूँ 2 करके देखता हूँ, इनवैलिड कॉम्बिनेशन, ओके, मुझे लगता है कि ये नहीं ले रहा है 001, 102 में ट्राई करता हूँ, invalid combination order type maintenance activity, I don't know system why it is giving me error, but it is wrong, ये totally wrong है। PM01 PM03 में आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, इन्होंने रिपेयर किया है। मैं यहाँ पे देखता हूँ करके 001 ये वर्क करता है नहीं करता, ये मैं सेव करूँगा। अब मैं देखिएगा
मैं आऊँगा नोटिफिकेशन क्रिएट करने के लिए, और यहाँ देखिएगा कि PM01 में क्या होता है। PM01 में ये आई हैव ओनली 10 मिनट, आई विल गो फॉर ओनली 10 मिनट, प्रेस इंटर एंड हियर यू कैन सी 001 इज कमिंग। सो आप जैसे ही डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ असाइन कर देंगे वो डिफॉल्ट वैल्यू आएगा। ओके, सो नो नीड टू वरी। फिर डिफॉल्ट वैल्यू फॉर असाइन ऑर्डर टाइप, सो मैं PM01 PM02 के लिए PM02 के लिए भी असाइन कर देता हूँ। तो PM02 के लिए मैं क्या करूँगा, ये रेगुलर मेंटेनेंस नहीं होता है, ये रिपेयर होता है, तो 003 में असाइन कर दूंगा, और मैं प्रिवेंटिव के लिए 002 असाइन कर दूंगा। तो जब भी मैं यूज करूँगा तो ये यही आएगा, और मैं सेव कर रहा हूँ इसको बैक। अब मैं जब PM02 का कोई मेंटेनेंस ऑर्डर टाइप करूँगा तो क्या आएगा देखिएगा, वो चेंज हो जाएगा। IW31 प्रेस इंटर, यहाँ PM02 प्रेस इंटर, यहाँ PM003 रिपेयर आ रहा है क्योंकि हम रिपेयर करते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या डील करते हैं सिस्टम के साथ, आपका क्लाइंट का क्या यूज है, वो कैसे उसको चीज़ें को डील कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने चेंज कर दिया। डिफाइन चेंज डॉक्यूमेंट कलेक्टिव परचेज, डिफाइंड चेंज डॉक्यूमेंट कलेक्टिव परचेज रिक्विजिशन एंड MRP। तो ये इसमें कुछ स्टैंडर्ड सेटिंग्स हैं, इसको आइए देखते हैं। सो इसमें क्या होता है कि पहले आपको तो अपने सर्च करना होता है प्लानिंग प्लांट। तो प्लानिंग प्लांट 1000 अपना है, इस पर प्रेस करिएगा तो प्लानिंग प्लांट 1000 में जितने भी ऑर्डर टाइप असाइन होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो सपोज दैट हम PM1 PM02 PM03 को लेके चल रहा हूँ, तो ये क्या है, ऑर्डर चेंज ऑर्डर, ये क्या है, चेंज डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर, कलेक्टिव रिक्विजिशन ऑर्डर। ओके, ये सारी चीज़ें मतलब ये कुछ स्टैंडर्ड फील्ड हैं जो इसमें बताया जा रहा है कि ये इस पर क्लिक करने पे बता नहीं रहा है ना, सबसे बड़ी बात कि इसका फुल फॉर्म क्या है। चेंज ऑर्डर स्टैंडिंग, ओके। सो जब इसमें क्या है कि PM01 PM02 और PM03 के लिए क्या है कि जब ऑर्डर आप क्रिएट करेंगे तो डॉक्यूमेंट चेंज करने के लिए अलाउ किए हैं या नहीं किए हैं, कलेक्टिव रिक्विजिशन के लिए चेंज करने के लिए अलाउ किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर आप इसको रिलीज करते हैं इमीडिएट, तो परचेज रिक्विजिशन या परचेज ऑर्डर क्रिएट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ इमीडिएट करेंगे तो तुरंत हो जाएगा। फिर उसके बाद वर्क फ्लो क्रिएट होगा, चेंज डॉक्यूमेंट होगा, फिर देन नॉन डिफॉल्टिंग फॉर लीनियर डेटा, लीनियर डेटा से रिलेटेड इसमें एक्टिविटी नहीं होगी। बस यही सारी सेटिंग्स है, ठीक है। वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट, गुड्स मूवमेंट फॉर ऑर्डर। तो गुड्स मूवमेंट इसके ठीक नीचे वाला टॉपिक है। आई विल यूज दिस गुड्स मूवमेंट फॉर ऑर्डर। सो मैं यहाँ से आके और मूवमेंट फॉर क्या इसमें करना है मुझे, गुड्स मूवमेंट फॉर ऑर्डर। सो गुड्स मूवमेंट फॉर ऑर्डर, आई विल गो थ्रू दिस वन एंड मूवमेंट टाइप फॉर ऑर्डर। सो आप यहाँ से ऑर्डर के लिए कौन कौन से मूवमेंट टाइप असाइन करने हैं आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और इसके वन सेकेंड, ये काम जो होगा ये MM कंसल्टेंट के द्वारा होगा। MM कंसल्टेंट विल गिव अस इंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग वी विल डू। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ये दिखाऊंगा कि इसमें हम मूवमेंट टाइप कैसे असाइन करते हैं। ओके, सो बट ये है कि ये टोटली मूवमेंट टाइप से होता है, इन द सेंस कि जब कभी भी आप ऑर्डर टाइप क्रिएट करोगे ना, मतलब ऑर्डर आप क्रिएट कर रहे हो, या सपोज दैट कोई भी ऑर्डर टाइप हो, ऑर्डर टाइप से मतलब नहीं होता है, बस मेंटेनेंस ऑर्डर की बात करूँ तो आप यहाँ कंपोनेंट में आएंगे। तो कंपोनेंट में अगर आप जनरल डेटा में जाते हैं, नहीं ये अलाउ नहीं कर रहा है, तो जनरल इसमें क्या होता है कि इसमें 261 मूवमेंट टाइप होता है। हम मेंटेनेंस ऑर्डर में 261 मूवमेंट टाइप के साथ डील करते हैं। और हम एक और होता है MB21, एक टी कोड होता है MB21। इस मूवमेंट इसमें हम 201 पे मूवमेंट है, मतलब 201 का मतलब होता है कॉस्ट सेंटर, 201 का होता है कंजम्पशन फॉर कॉस्ट सेंटर वेयर हाउस, और 261 का मतलब होता है कंजम्पशन फॉर ऑर्डर फ्रॉम वेयर हाउस। सो ये दो दो ही ऑर्डर टाइप के साथ हम मेंटेनेंस एक्टिविटी में डील करते हैं, ठीक है। और भी ऑर्डर टाइप होते हैं, और भी ऑर्डर टाइप यूज होते हैं, बट बेसिकली मेंटेनेंस ऑर्डर में 261 होता है, और कॉस्ट सेंटर पे जब हम मटेरियल का कंजम्पशन करते हैं तो वो 201 होता है। ओके, सो वही सारी चीजें यहाँ पे वो असाइन करने के लिए बताएंगे, देन हम लोग करेंगे कि इसमें किसी ने अभी तक किया नहीं है
और जैसे क्या होता है कि पैकेज क्या है, तो पैकेज यहाँ से लेंगे, पैकेज इन द सेंस पैकेज इज नॉट देयर इन सिस्टम ड्यू टू दिस रीजन, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू सर्च, बट पैकेज क्या है ये क्या किस तरह का पैकेज है, ये चीज़ें एमएम कंसल्टेंट हम लोग को डिस्कस करेंगे, बट आई विल एक्सप्लेन कि ये क्या पैकेज होगा, ठीक है, किस यूज के लिए पैकेज यूज कर रहे हैं, बिलिंग के लिए क्या है, या प्रोजेक्ट फाइनेंस प्लानिंग के लिए किस तरह का पैकेज है, प्रोजेक्ट सिस्टम से रिलेटेड भी होती हैं ये सारी चीज़ें, वो पैकेज बताते हैं। सपोज दैट मैं कुछ भी ऐसा नहीं ले सकता, ठीक है, सो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। फिर मटेरियल ग्रुप यूज करेंगे, इसमें ऑर्डर टाइप डालेंगे, देन मूवमेंट टाइप फॉर गुड्स रिसिप्ट 261 होगा, फिर उसका कैंसिल का 260 होता है, फिर उसके बाद गुड्स इशू का कितना होगा 261 होगा, फिर उस कैंसिल का उतना होगा, फिर मूवमेंट टाइप फॉर जीआर प्रोडक्ट बाई, वो सारी मतलब सारे मूवमेंट टाइप को हमको मेंटेन करना पड़ता है, बट हमको उतना मूवमेंट टाइप नहीं मालूम है, ये एमएम कंसल्टेंट का काम होता है, वो बताएंगे, देन हम उसको असाइन करेंगे, ओके। So this is how we had configured up to here, okay. On next lecture we will discuss from costing data, okay. So I have, I think it is a important topic, due to this reason from here we will discuss in next topic, okay. So आज के लिए भैया इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ ये रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन को भी डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर फेस एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू गेट एनी डाउट, you can connect me anytime, no worry, no need to worry about it, you can connect me anytime, okay, and we will discuss on this thing, okay. तो ये कुछ ही सेटिंग्स अभी रिमेनिंग रह गए हैं, अदरवाइज आफ्टर दिस आवर कॉन्फ़िगरेशन विल बी कंप्लीटेड। ये जो भी हाईलाइटेड टर्म्स दिख रहे हैं ये ECC 6.0 में नहीं मिलते हैं, और ये सेटिंग्स आपको मिलेंगी हाना सर्वर। For your better understanding, for your better knowledge, I had added this settings in configuration, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर नॉलेज के लिए मैंने इसको ऐड किया। सो ओके, आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ मैं, ओके, बाय, टेक केयर, बाय भैया।